So today we are going to see another chapter known as a biogenetic pathways. So basically they are going to ask you only one or two question from this part. So if you have seen the previous papers, अगर आपने previous paper का कुछ analysis वगैरह किया होगा जीपैट का, तो यहाँ से इस पोर्शन से आपको एक या दो क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो दे माइट बी फ्रॉम आइदर बायोजेनेटिक पाथवे, जो बायोजेनेसिस होता है प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, उससे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको जो ट्रेसर टेक्निक होता है उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है. मोस्टली एक दो या मैक्सिमम तीन, ऐसा बोल के आप चलो कि तीन क्वेश्चन मैक्सिमम इस पार्ट से आ सकते हैं. ऐसा नहीं कि आएंगे ही, कभी आ भी सकते कभी नहीं भी आ सकते, बिकॉज आफ्टर ऑल they are going to ask you 10 questions from pharmacognosy. So that may, for that you have to read or you have to study a lot of things. So metabolic pathways in a higher plant and their determination. Actually एक यूनिट होता है आपको सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में. फर्स्ट ऑफ all the living organisms needs a various number of organic molecules for their survival purpose, for respiration, for formation of building blocks. तो respiration के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड इससे वगैरह लगता है. बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स नथिंग बट द प्रोटीन आर रिक्वायर्ड, देन फॉर प्रोटेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड्स अ वेरियस नंबर ऑफ organic molecules for survival purpose, for respiration, for building blocks, for protection, etc. So out of that, carbohydrate, proteins, lipids, nucleic acid, okay, etc. So these, okay, for the synthesis of these molecules like carbohydrate, protein, lipids, and nucleic acid, a series of chain reaction occurs in the every organism, in the plant as well as in the microorganism as well as in the humans. So for the synthesis of these molecules, carbohydrate, lipids, proteins, and nucleic acid, there occurs a series of reaction. That series or that reaction or the way of reaction or the path of this reaction are known as a metabolic pathways. So these whatever series of reaction that occurs in the every living organism for the synthesis of this carbohydrate, proteins, lipids, proteins, nucleic acid, or like glycosides, terpenoids, tannins, alkaloids. So this is known as a metabolic pathway. Now first, these organisms like humans and plants and microorganisms, though we are different, microorganism प्लांट से डिफरेंट है, प्लांट ह्यूमन से डिफरेंट है, ह्यूमन दोनों से भी डिफरेंट है. ठीक है. सो दो ऑर्गेनिज्म वेरी इन द they are very much difference in the characteristics, but general pathway for production of these fats, carbohydrate, proteins, nucleic acid, it is a very much similar amongst themselves. जो प्लांट में होता है, जो एनिमल्स में होता है, जो ह्यूमंस में होता है, जो माइक्रोबियल्स में होता है. ठीक है. सो उसके सिंथेसिस के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस की, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, so synthesis of this carbohydrate, protein, nucleic acid, the whatever the steps of reaction, whatever the path of reaction, whatever the pathway, so it is very much common in the all living organisms. These, that's why they are known as a this metabolism or the synthesis of this component like biomolecules. So the pathway for all synthesis of biomolecules, it is common in the all organism. So that's why they are known as a primary metabolism. Synthesis of carbohydrate, proteins, lipids, then vitamins. Okay, so it is known as a primary metabolism, and the compound which are being formed or synthesized in this reaction, they are known as a primary metabolite. तो primary metabolite कौन से? वही बायोमोलिकुल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स. सो दीज आर नथिंग बट द प्राइमरी मेटाबोलाइट. प्राइमरी मेटाबोलाइट क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि इनका जो सिंथेसिस करने का जो स्टेप्स होता है या फिर जो भी पाथवे होता है, स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, सो ये कॉमन होता है किसमें? सभी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे माइक्रोबियल हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, तो उनको प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलते हैं. व्हाट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट? Apart from the primary metabolic pathways, there are some other compounds which are have less distribution in the nature. तो primary जो metabolite है, they are widely distributed. तो ये metabolite आपको सब में मिलेंगे. कसे? की कुठलाही प्लांट घेतला त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट असणार, सेल्युलोज असणार, कुठलाही प्लांट घेतला त्याच्यामध्ये प्रोटीन असणार, लिपिड असणार, विटामिन्स असणार. सो दे हॅव वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्युटेड इन द प्लांट्स, प्रायमरी मेटाबोलाइट. नाउ अपार्ट फ्रॉम द प्रायमरी मेटाबोलाइट, there are certain other compounds which are less distributed, okay, less distributed in the nature, and these compounds are called as a secondary metabolite. Okay, these compounds are known as secondary metabolite. For example,
So whatever alkaloids are there, glycosides, terpenoids, tannins, volatile oil, flavonoids, okay, or toxins or anything, allergen, etc. So all these are nothing but the secondary metabolites of the plant. तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि प्राइमरी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मेटाबोलाइट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. तो आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट सेकेंडरी मेटाबोलाइट में डिफरेंट आना चाहिए कि प्राइमरी मेटाबोलाइट मतलब बायोमोलिकुल्स. बायोमोलिकुल्स में क्या क्या आएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, वोलेटाइल ऑयल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड. तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है. these are required for the living of living organism. They are the necessary for survival purpose. Now secondary metabolite, they are not important for survival purpose, but they have certain other functions in the plant, okay, like storage house of some chemicals or protection of plant, etc, etc. So these are known as secondary metabolites. Okay? They are specific for particular organism and they are not produced as a not in they are not produced as a normal cell condition. Some secondary metabolites have obvious reason for their production, like defense mechanism. जैसे होता है ना आपका कोई अगर अल्कोलाइड है जैसे एट्रोपा बेलोना, उस पे एट्रोपिन होता है. जैसे क्यूरारे अल्कोलाइड्स, उसमें क्यूरारिन होता है, ठीक है. सो क्यूरारे अल्कोलाइड्स अगर वो प्लांट किसी ने खा लिया तो वो उसका पैरालिसिस हो जाएगा. So likewise, so these secondary metabolites which show a vast pharmacological activity. Secondary metabolite को pharmacological activity भी बहुत अलग अलग तरीके से होता है. तो उसमें बहुत सारा है. जैसे एट्रोपिन हो गया. एट्रोपिन हैज अ माइट्रियाटिक एक्टिविटी, sorry, meiotic. It is a meiotic in nature and it is used as a pre-anesthetic medication. It will cause inhibition of all the secretion and all that. So there are a lot of activities like caffeine जो होता है आपका. Caffeine is alkaloid which is a CNS stimulant. डायरेटिक भी होता है. तो हर एक अल्कोलाइड, हर एक ग्लाइकोसाइड, जैसे ग्लाइकोसाइड ले लो, डिजिटॉक्सिन, डिगोक्सिन, सो इट इज अ कार्डियोजेनिक इन नेचर, कार्डियोटोनिक इन नेचर. तो उसका यूज होगा मायोकार्डियल हार्ट फेलियर में. सो लाइक वाइज दैट. सो ईच एंड एवरी secondary metabolite, they may have different physiological action and they may be useful as a medicine. So how these secondary metabolites are formed? Because primary metabolite तो कैसे बनता है ये आपको 12th में हो चुका है. How there is a synthesis of sugar in the plant. So ये आपको मालूम होगा कैसे बनता है शुगर प्लांट में. आपको मालूम होगा फोटोसिंथेसिस. ओके. So what is metabolism? Metabolism is comprised of anabolism, that is a energy. Anabolism is synthetic synthesis of metabolite. So energy is consumed, so energy utilized. And catabolism is nothing but the energy yielding or energy is synthesized. So anabolism and catabolism, that is metabolism. Now plant में क्या होता है कि plant utilizes the carbon dioxide and hydrogen, carbon dioxide and water. So plant क्या करते हैं? carbon dioxide and water utilize करके क्या करते हैं? carbohydrate बनाते हैं. So they synthesize the sugars by utilizing the water and carbon dioxide, known as a फोटोसिंथेसिस. इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. नाउ प्लांट में कार्बोहाइड्रेट एक बार बन गया. सो कार्बोहाइड्रेट, once plant have synthesized the carbohydrate, now that carbohydrate can be utilized for different production of different metabolites. So for example carbohydrate, so after glycolysis of carbohydrate, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होने के बाद में क्या होता है? पायरुविक एसिड. So glycolysis, they will undergo glycolysis, you will get a pyruvic acid. Pyruvic acid, after कंप्लीट मेटाबॉलिज्म, यू विल गेट एसिटिल कोई. ये आपने देखा है ग्लाइकोलाइसिस में भी बनता है एसिटिल कोई. नाउ फ्रॉम दिस एसिटिल कोई मॉलिक्यूल lot of secondary metabolite or lot of another molecules are synthesized. For example, by using acetate mevalonate pathway, by utilizing this acetate mevalonate pathway, acetyl CoA is converted into terpenoids. Same acetyl CoA is converted into polyketides and aromatic compounds by another pathway. Acetyl CoA is converted into fatty acids by एसिटेट मैलोनेट पाथवे. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. क्वेश्चन एज इट इज आया है. सो कन्वर्जन ऑफ एसिड, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड और कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट और कन्वर्जन ऑफ एसिटिल कोए टू द फैटी एसिड इज कैरिड आउट बाय व्हिच पाथवे? ऑप्शन में था एसिटेट पाथवे, एसिटेट मैलोनेट पाथवे, एसिटेट मालवानेट पाथवे, सिक्किमिक एसिड पाथवे. ऐसा कुछ ऑप्शंस थे. सो रिसेंटली आ चुका है. Remember, conversion of acetate into fatty acid is done by acetate pathway, acetate malonate pathway. तो acetate malonate pathway आपको fatty acid देगा plant में. So likewise that. So this carbohydrate of the plant, they are converted into aromatic compounds. Carbohydrate from the plant, they are converted into aromatic compounds. Sikimic acid also. Sikimic जो कार्बोहाइड्रेट का इंटरमीडिएट होता है, जैसे
जो 4 कार्बन एटम वाला शुगर होता है, सो राइबो जो भी इंटरमीडिएट होता है 3 कार्बन 4 कार्बन एटम वाला कार्बोहाइड्रेट का जो होता है, जो ना स्प्लिटिंग फेज में आता है ना, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन phosphate, glyceraldehyde 3 phosphate. So these 3 4 carbon atom compounds, they are intermediate compound in the carbohydrate metabolism, okay, in the glycolysis. So those metabolite by utilizing the Sikimic acid pathway, जो भी 4 5 कार्बन का मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट है, that will utilize Sikimic acid pathway and it will synthesize aromatic compound. Now aromatic compound after transamination and deamination, transamination and removal of ammonia, you will get amino acids. And amino acids, you know that from amino acids proteins are synthesized in the plant, and these amino acids also utilized for the synthesis of secondary metabolite known as alkaloids. अगर प्रोटीन अमीनो एसिड से न्यूक्लिक एसिड बनता है, so that's how there is a synthesis of secondary metabolite in the plant. हर एक मेटाबोलाइट का अलग अलग पाथवे होता है, जैसे सिक्किमिक एसिड पाथवे एक पूरा अलग पाथवे, एसिडिक पाथवे एक पूरा अलग पाथवे, ठीक है। सो यहाँ सेम, यहाँ पे याद रखो कि एसिटिल कोए that is converted into fatty acid by acetate malonate pathway, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। दूसरे सिक्किमिक एसिड के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, उसके ऊपर कैसा क्वेश्चन था कि अमीनो एसिड्स आर इंटरमीडिएटली फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग पाथवे। तो अमीनो एसिड किस में बनता है, ऐसा क्वेश्चन था। तो अमीनो एसिड इज फॉर्म्ड इन द सिक्किमिक एसिड पाथवे। सिक्किमिक एसिड पाथवे में क्या बनता है, अमीनो एसिड्स। सो यू कैन सी ओवर हियर। So intermediate compound from your glycolysis, so they are utilized and converted into aromatic compounds using Sikimic acid pathway. And after transamination and removal of ammonia, you are going to get amino acids. From amino acids, ये तो बायोमोलिक्यूल्स हो गए दो प्राइमरी, लेकिन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं, देखो एसिटेट इज कन्वर्टेड, एसिटिल कोए इज कन्वर्टेड इनटू दिस फैटी एसिड बाय एसिटेट मेलोनेट पाथवे। एसिटिल को इज कन्वर्टेड इनटू टर्पेनॉइड्स, इसके ऊपर अलग पाथवे है, देखो एसिटेट मेवलोनेट पाथवे। इतने यहाँ पे क्या है, मेलोनेट है, मेलोनेट यहाँ पे मेवोलोनेट पाथवे। सो एसिटेट मेवलोनेट पाथवे गिव टर्पेनॉइड्स, एसिटेट मेलोनेट पाथवे विल गिव यू फैटी एसिड्स, सिक्किमिक एसिड पाथवे विल गिव यू अमीनो एसिड्स। सिक्किमिक एसिड पाथवे क्या देगा आपको, अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड से क्या बनेंगे, अल्कलॉइड्स। So this is the one we will see in the detail second. Sikimic acid pathway. Sikimic acid pathway, इसको Sikimic acid pathway क्यों बोलते हैं? Because there is a formation of one compound known as Sikimic acid, and from that intermediate compound, so it is utilized to synthesize a variety of another metabolites. So Sikimic acid pathway. So we'll see. First अपन देखेंगे Sikimic acid pathway होता क्या है. So first, okay. So erythrose 4-phosphate. It is an intermediate of your glycolysis, erythrose 4-phosphate, ये और phosphoenol pyruvate, अगेन ये भी क्या है, इंटरमीडिएट है। सो यूजिंग इंटरमीडिएट phosphoenol pyruvate and erythrose 4-phosphate, so synthesis of this 3-deoxy d-arabino hepta gluconic acid. So there is synthesis of this compound known as a 3-deoxy 4-arabino hepta gluconic acid. So cyclic 7-membered gluconic acid. Now this gluconic acid is converted to deoxyquinic acid, okay, deoxyquinic acid, and deoxyquinic acid is converted to Sikimic acid. This is known as Sikimic acid. And from this Sikimic acid, there are two ways. First, Sikimic acid is converted into deoxy 3-diphosphosikimic acid phosphate. Then Sikimic acid, this Sikimic acid is converted to chorismic acid. Chorismic acid बनेगा। chorismic acid से आपको बनता है एंथ्रेनिक एसिड प्लांट में, कोरिस्मिक एसिड से बनता है एंथ्रेनिक एसिड, और उससे ही बनता है आपका बेंजोइक एसिड। और एंथ्रेनिक एसिड बनने के बाद में आपको एक बनेगा आपका अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। ओके, सो ट्रिप्टोफैन, यू आर गोइंग टू गेट ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बाय यूजिंग सिक्किमिक एसिड पाथवे। सो सिक्किमिक एसिड बनेगा पहले, बाद में उसका कोरिस्मिक एसिड बनेगा, और कोरिस्मिक एसिड का एंथ्रेनिक एसिड बनेगा, और बाद में आपको ट्रिप्टोफैन मिलेगा। तो ये एक अमीनो एसिड आप मिलेगा, ठीक है। दूसरा होता है आपका कि जो कोरिस्मिक एसिड है, कोरिस्मिक एसिड से आपको बनेगा प्रीफेनेमिक एसिड। ये जो है प्रीफेनेमिक एसिड, इसको बोलते हैं प्रीफेनेमिक एसिड, और क्वेश्चन इसके ही ऊपर आया था। सो एंथ्रेनिक एसिड एंड प्रीफेनेमिक एसिड, they are intermediate formed in the following metabolic pathway for plant. So
Anthranilic acid, prephenamic acid, they are formed in the Sikimic acid pathway, and from prephenamic acid, prephenamic acid, you are going to get amino acid like phenylalanine and tyrosine. So here you are getting three amino acids: tryptophan, phenylalanine, and tyrosine by using Sikimic acid pathway. Okay, and that's why एक question ऐसे भी आया था एक बार, aromatic amino acids. Aromatic amino acids, they are formed in the following metabolic pathway of plant. So that is Sikimic acid pathway. So we'll see in the detail Sikimic acid pathway. Sikimic acid pathway. Okay. So first erythrose 4-phosphate and phosphoenol pyruvate. पहले स्टेप में क्या होता है, इरेथ्रोज 4-phosphate एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. अभी ये कहाँ से आया, ये आता है आपका ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट. सो ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट कौन है, इरेथ्रोज 4-phosphate एंड phosphoenol pyruvate in the plant. Erythrose 4-phosphate and phosphoenol pyruvate interact with each other to form a 2-keto-3-deoxy-7 phosphoglucoheptonic acid. तो एक बनता है देखो 2-keto-3-deoxy-7 phosphoglucoheptonic acid. फॉस्फो मतलब फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, ग्लूको मतलब ग्लूकोज का, और हेप्टोनिक मतलब 7 कार्बन. सो 2-keto-3-deoxy-7 phosphoheptogluconic acid, and this is synthesized by enzyme known as a DAPH synthase. DAPH मतलब वही है कि डीऑक्सी फॉस्फोहेप्टा ग्लूकोनिक एसिड सिंथेटेज. तो ये एंजाइम क्या करेगा, कैटलाइज करेगा DAPH सिंथेटेज. सो यू आर गोइंग टू गेट 2-keto-3-deoxy-7 phosphoglucoheptanoic एसिड. तो ये मिल जाएगा आपको हेप्टोनिक एसिड. अभी ये हेप्टोनिक एसिड कन्वर्ट होगा 3-dehydroxycunate में. So your heptonic acid is converted to 3-deoxycunate by the enzyme known as a deoxycunate, okay, dehydrocunate synthetase. Dehydrocunate synthetase. So it catalyzes the further reaction and forms 3-dehydrocunate from the which compound? This compound. So 2-deoxy, 2-keto-3-deoxy-7 phosphoglucoheptonic acid. So it is converted into 3-dehydrocunate. तो क्यूनेट में कन्वर्जन करता है, कौन करता है, DHQ, दैट इज डिहाइड्रोक्विनेट. ये एंजाइम पहले इसमें DAPH सिंथेटेज, मतलब वही ना कि डीऑक्सी फॉस्फोग्लूकोहेप्टनिक एसिड सिंथेटेज. NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इट इज यूज्ड एज अ कोफैक्टर फॉर दिस रिएक्शन. सो ये जो रिएक्शन हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ 2-keto-3-deoxy-7 phosphoheptogluconic एसिड इनटू 3-dehydroquinate, तो उसके लिए एक कोफैक्टर लगता है, उसको NAD, दैट इज NAD प्लस निकोटिनामाइड adenine dinucleotide. In presence of another enzyme known as a 3-dehydroquinate dehydratase. So ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करेगा, किससे, 3-dehydroquinate से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, एंड इट विल फॉर्म 3-dehydroshikimic acid. 3-dehydroshikimic acid. Now ATP based phosphorylation. Phosphorylation मतलब क्या, कि addition of phosphate group. So ATP based phosphorylation occurs to the product that is dehydroshikimic acid and forms a shikimic acid 3-phosphate. तो फॉस्फेट ग्रुप उसको अटैच होगा तो क्या बनेगा, शिकिमिक एसिड 3-phosphate और शिकिमेट 3-phosphate इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज शिकिमेट काइनेज. ये एक स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होता है. सो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द डिटेल्स ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन. कुछ इस तरीके से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं जैसे मैंने बोला है. और नेक्स्ट स्टेप इज नथिंग बट द, ओके, नेक्स्ट स्टेप इज नथिंग बट द again phosphoenol pyruvate, so that is the intermediate from the glycolysis, reacts with the shikimic 3-phosphate, जो शिकिमिक एसिड का फॉस्फेट डेरिवेटिव बना है पहले स्टेप में, उसके साथ में रिएक्ट होगा, एंड इट विल फॉर्म ए 5-enol pyravil shikimate 3-phosphate, 5-enol pyravil shikimate 3-phosphate with the help of enzyme known as a 5-enol pyravil shikimate 3-phosphate synthetase. Now next step क्या होगा, next step is nothing but the formation of chorismate. Next step is nothing but the formation of chorismate. So next product is chorismate or chorismic acid. Shikimate मतलब shikimic acid. Chorismate is formed from the product 5-enol pyravil shikimate 3-phosphate via enzyme chorismate synthetase. ये chorismate synthetase enzyme क्या करेगा, ये 5-enol shikimate 3-phosphate को chorismic acid में बनाएगा. तो chorismic acid बन गए यहाँ पे. ओके, शिकिमिक एसिड से अलग अलग अमीनो एसिड बनते हैं, कोरिज्मिक एसिड से अलग अमीनो एसिड बनते हैं. शिकिमिक एसिड से आपका एंथ्रेनिलिक एसिड बनता है और एंथ्रेनिलिक एसिड से आपका ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बनता है. कोरिज्मिक एसिड से आपका फिनाइलअलानीन एंड टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड बनता है. Clason rearrangement reaction occurs with the chorismate in presence of enzyme chorismate mutase and prephenamic acid is formed. Prephenamic acid is formed. From chorismic acid, various intermediate product like anthranilic acid
then phosphoribosyl anthranilic acid, they are formed which will lastly produce a tryptophan. इसमें आपको tryptophan अमीनो एसिड मिल जाएगा कोरिज्मिक एसिड से इंटरमीडिएट. while प्रोपेनेमिक एसिड जो है, प्रोपेनेमिक एसिड is converted into phenyl butyric acid or 4-hydroxyphenyl butyric acid, which lastly will give you two amino acids known as tyrosine and phenylalanine. तो देखो जो पाथवे है अपन फिर से देखने वाले. तो पहले ही बोला है मैंने कि जैसे erythrose 4-phosphate, that is a intermediate in the glycolysis, and phosphoenol pyruvate also intermediate in the glycolysis. So these two compound combine together, ये इनका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन होगा दोनों. So condensation of this erythrose 6-phosphate and phosphoenol pyruvate leads to formation of one 7, okay, one compound known as a DAPH, 3-deoxy, okay, 3-deoxy arabino heptagluconic acid, so phosphate, okay, so that is formed, and after that it is converted into quinic acid, 3-dihydroquinic by quinate enzyme, quinate hydroxylase enzyme. So quinic acid is formed. Quinic acid is converted into one side at a quinic acid, and from this dihydroquinic acid you are going to get this dihydrosikimic acid. So 3-dihydrosikimic acid और 3-dihydrosikimic acid, ठीक है, is converted into this, again एक acid होता है, इसका कोई यूज नहीं. Okay. Now 3-dihydrosikimic acid is converted into sikimic acid. Sikimic acid is converted into 3-phosphoenol pyruvic sikimic acid, 3-phosphoenol pyruvate sikimic acid, और उसका phosphoenol pyruvic sikimic acid is converted into कोरिज्मिक एसिड. अपन ने ऊपर में देखा है कि कौन से एंजाइम कैटलिस्ट कर सकते. नाउ दिस कोरिज्मिक एसिड इज a central intermediate in the shikimic acid which is utilized for the synthesis of two acids, anthranilic acid at one end, benzoic acid, then also corismic acid. This anthranilic acid is utilized to this corismic acid is utilized to synthesize anthranilic acid, benzoic acid and prephenamic acid. From anthranilic acid you are going to get this tryptophan. anthranilic acid से बनेगा tryptophan. anthranilic acid का बाद में बनता है tryptophan. और ये जो आपका prephenamic acid है, prephenamic acid will give you this phenyl pyruvic acid and 4-hydroxyphenyl pyruvic acid, which in turn respectively will give you phenylalanine and tyrosine. तो देखो सिक्किमिक एसिड पाथवे में इंटरमीडिएट कौन कौन से बनते हैं आपको याद रखना कि सिक्किमिक एसिड पाथवे में बनता है आपका सिक्किमिक एसिड, एक होगा ये सिक्किमिक एसिड. तो ये सिक्किमिक एसिड पाथवे में कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, देखो एक बनता है सिक्किमिक एसिड मेन जो सिक्किमिक एसिड, ठीक है, एक उसके बाद में बनता है कोरिज्मिक एसिड, और ये कोरिज्मिक एसिड आपको एक साइड पे देता है एंथ्रानिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड प्रीफेनेमिक एसिड. प्रीफेनेमिक एसिड. So anthranilic acid will give you tyrosine, ये वाला tyrosine, sorry, anthranilic acid will give you tryptophan, and ये prephenamic acid will give you phenylalanine as well as tyrosine. ये दो अमीनो एसिड आपको देगा prephenamic acid, ठीक है. तो यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन कौन बनता है इतना याद रखो. क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि prephenamic acid is formed in the following pathway. So prephenamic acid is formed in the Sikimic acid pathway, ठीक है. कोरिज्मिक एसिड, प्रोपेनेमिक एसिड, सिक्किमिक एसिड एंड क्विनिक एसिड. तो क्विनिक एसिड भी बनता है यहाँ पे. क्विनिक एसिड भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट. क्विनिक एसिड से कुछ बनता नहीं इसलिए उसका इंपॉर्टेंट नहीं. सो दिस इज नथिंग बट द सिक्किमिक एसिड पाथवे. सो बेसिकली दिस सिक्किमिक एसिड पाथवे विल गिव यू एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. तो ये सिक्किमिक एसिड पाथवे में क्या मिलता है आपको, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. एंड यू नो दैट अल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसिस फ्रॉम अमीनो एसिड्स. बहुत सारे बाकी बहुत सारे सिंथेसिस होते हैं. Now what is the importance of this Sikimic acid pathway? Okay, so इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. So what is the important, main importance is nothing but the you are going to get phenyl propanoids. That means you are going to get phenyl alanine and tyrosine and tryptophan. So phenyl propanoids भी बनते हैं Sikimic acid. जैसे phenyl alanine बन गया, tyrosine बन गया. So they are the main precursor for the synthesis of coumarin, glycosides, lignans, tannins and flavonoids. जो phenyl alanine होता है, tyrosine होता है, they are the main precursor for the coumarin, lignan, tannins and flavonoids. Then gallic acid is also biosynthesized from Sikimic acid. ठीक है, एक rearrangement reaction होता है उसमें, तो वहाँ पे आपको gallic acid मिलेगा. So gallic acid is the main component of your tannins. Gallic acid क्या है, tannins बनाता है. So they are biosynthesized from Sikimic acid pathway. Rearrangement of 3,4-dihydrosikimic acid
in presence of enzyme known as Sikimic dehydrogenase. तो वो आपको वहां से देगा गैलिक एसिड. Then aromatic metabolite and alkaloids are also formed by this cycle. So important Sikimic acid का क्या है कि alkaloid जितने भी बनेंगे आपके प्लांट में, they all are biosynthesized from amino acids. Amino acid कहाँ से बनेंगे? वो बनेंगे Sikimic acid pathway से. So that's why Sikimic acid pathway is important in the plant to synthesize the various kind of secondary metabolite like coumarin, lignin, then tannins, flavonoids, gallic acid, then amino acids, and lastly alkaloids. Some glycosides also having some glycosides also formed as an intermediate in the Sikimic acid. एक याद रखो इसका importance है. Now you can see here एक summary है यहाँ पे. Now this Sikimic acid pathway. So what happening? Sikimic acid बनता है आपका, उसके बाद में कोरिज्मिक एसिड बनता है, उसके बाद में प्रेफेनेमिक एसिड बनता है. नाउ प्रेफेनेमिक एसिड जो बना है वो आपको देगा टायरोसिन एंड उसके टायरोसिन एंड फिनाइलएलानाइन, उसके बाद में अल्कोलाइड्स. तो वो प्रेफेनेमिक एसिड उसका फिनाइल C3 कंपाउंड मतलब फिनाइल रिंग प्लस 3 कार्बन एटम ज्वाइन होंगे, उसको बोलेंगे फिनाइल प्रोपेनॉइड्स. तो वो आपको बोला है वो इंटरमीडिएट यूज करके फ्लेवोनाइड बनाते हैं प्लांट में. तो वही इंटरमीडिएट यूज करके सिनेमिक एसिड बनता है, सिनेमिक एसिड एंड फाइनली फिनाइल C1 compound. So Sikimic acid is not, so it is a main pathway in the plant for production of secondary metabolites. Now एक समरी फिर से देखो. Sikimic acid, okay, Sikimic acid कब बनेगा? क्लोरोजेनिक एसिड. तो इट इज नॉट यूजफुल, इसको ज्यादा यूजफुल नहीं क्लोरोजेनिक एसिड. Sikimic acid से बनता है आपका कोरिज्मिक एसिड, कोरिज्मिक एसिड से बनता है आपका एंथ्रेनिक एसिड, एंथ्रेनिक एसिड से बनता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनता है इंडोल ग्लूकोसिनोलेट, इंडोल फाइटोलेक्सिन, ट्रिप्टोमाइन बनेगा इंडोल एंड क्विनोलिन अल्कलॉइड्स, और लास्ट में इंडोल एसिटिक एसिड बनेगा. तो ये ट्रिप्टोफैन से इतना बनता है. तो वही कोरिज्मिक एसिड जो बना है आपके सिकिमिक एसिड पाथवे में, उससे प्रेफेनेमिक एसिड बनता है, और प्रेफेनेमिक एसिड से आपका फिनाइलएलानाइन बनता है, टायरोसिन बनता है. तो फिनाइलएलानाइन अमीनो एसिड बनेगा, तो उसमें आपको फिनाइल इथाइलामाइन कंपाउंड मिलेगा, सिनेमिक एसिड मिलेगा, ठीक है, आइसोक्विनोलिन एंड बेंजाइल आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड्स मिलेंगे. अभी ये सिनेमिक एसिड जो है उससे और मेटाबोलाइट बनता है. फ्रॉम सिनेमिक एसिड यू आर गोइंग टू गेट फ्लेवोनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन्स, देन लिग्निन्स, coumarins एंड सैलिसिलिक एसिड. ओके, सो जो टायरोसिन बना है आपका प्रेफेनेमिक एसिड से, तो टायरोसिन से क्या बनेगा? अल्कोलाइड्स तो बनेंगे, देन साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स बनेंगे, बीटालिन्स, मॉर्फिन, टायरामाइन बनेगा, ठीक है. नाउ जो कोरिज्मिक जो सिनेमिक एसिड है उसमें जो सैलिसिलिक एसिड लास्ट में एक बनता है, सैलिसिलिक एसिड से भी बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं, कैटेकोल बनता है, टैनिन्स बनता है, मिथाइल सैलिसिलेट, हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड. Okay, so that's how Sikimic acid is a very important pathway for production of secondary metabolites in the plant. Question आता है इसके ऊपर. Now biosynthesis of flavonoids. So flavonoids के बारे में याद रखो, flavonoids has a very important role in the body. जो flavonoids होते हैं वो they are nothing but the antioxidants. So that's why they are very important. So flavonoids are biosynthesized via condensation of Sikimic acid and acyl polymalonate pathway. The phenyl propane, that is cinnamic acid derivative, they are synthesized from Sikimic acid, which act as a precursor for polyketide synthesis. Polyketide synthesis. Okay, in this scheme, additional 3 acetate residue, जो acetic acid होता है, 3 acetic acid, एक बार आपका ये बन गया कौन सा कि फिनाइल प्रोपेनाइड यूनिट, उसमें 3 acetic acid उसका इनकॉर्पोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, and then followed by ring closure. In the plant biosynthesizes different classes of flavonoids like flavonols, flavonols, catechins, isoflavones. बहुत सारे टाइप के फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, डायहाइड्रोफ्लेवोनॉल्स, एंथोसाइनिन्स एंड चाल्कोन्स थ्रू सब्सिक्वेंट हाइड्रोक्सिलेशन एंड रिडक्शन. तो इसका बात भी कुछ इस तरीके से होता है. देखो, ठीक है, ये फिनाइल प्रोपेन मतलब ये क्या है? ये फिनाइल प्रोपेन मतलब C3, फिनाइल C3 कंपाउंड. देखो ये क्या है? फिनाइल प्रोपेन. ये कहाँ से आएगा आपको? ये आएगा आपको सिकिमिक एसिड पाथवे से, ठीक है, फिनाइल प्रोपेन. नाउ जो 3 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है या 3 एसिटेट, ठीक है, 3 एसिटेट, so 3 acetic acid molecule and phenyl propane moiety, they are condensed together to form a polyketide.
एंड फॉलोड बाय रिंग क्लोजर। ये जब कंडेंस होगा और रिंग क्लोजर होगा, कंडेंस होने के बाद ऐसा और रिंग क्लोजर होने के बाद आपको मिलेगा फ्लेवोनॉइड। सो चालकोन मोइटी पहले मिलता है आपको, चालकोन मोइटी लास्ट में मिलता है आपको फ्लेवोनॉइड। सो दिस इज अ बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड इन द प्लांट। कि फ्लेवोनॉइड कैसे बनेंगे? फ्लेवोनॉइड बनने के लिए, फ्लेवोनॉइड क्या होते हैं कि फ्लेवोनॉइड दे आर नथिंग बट द phenyl phenyl ring containing compound and ketone compound, flavonoids. Okay, so these are the antioxidants and that's why we are interested in this. So flavonoids are biosynthesized by condensation of Sikimic acid and acyl polymalonate pathway. Okay, the phenyl propane, that is cinnamic acid derivative, synthesized from Sikimic acid, which acts as a precursor for polyketide in a so in the scheme in this pathway, three acetate molecules, they are incorporated into a structure that is known as phenyl propane or phenyl C3 compound, followed by a ring closure. The plant biosynthesizes a different type of flavonoids like flavonols, catechin, isoflavones, dihydroflavonols, and anthocyanidins and chalcones through this subsequent hydroxylation and reduction. तो इसमें आपको चालकोन मोइटी मिलेगा और बाद में फ्लेवोनॉइड मिलेगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ, so what is the starting material for biosynthesis of flavonoid in the plants? तो acetic acid and phenyl propane, ठीक है, phenyl propane and acetic acid. Now biosynthesis of glycosides, ठीक है, biosynthesis of glycoside, the metabolic process of glycoside formation occurs in the two step, ठीक है, in the various type of a glycon part. तो ग्लाइकोसाइड में क्या होता है कि ग्लाइकोसाइड में दो पार्ट होते हैं, ए ग्लाइकोन एक पार्ट होता है, तो ए ग्लाइकोन एंड दूसरा होता है शुगर पार्ट, दूसरा होता है शुगर पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? ग्लाइकोन। शुगर पार्ट इज नोन एज ग्लाइकोन एंड नॉन शुगर पार्ट इज नोन एज ए ग्लाइकोन. दे आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लायकोसाइड बॉन्ड इन द ग्लायकोसाइड. बरोबर. जेवढं सांगतोय तेवढंच लक्ष ठेवा, जास्त काही स्ट्रेस घ्यायची गरज नाही याच्यामध्ये. फक्त लक्ष ठेवा की अमोनियम ऍसिड कुठनं बनतात, सिकिमिक ऍसिड मधनं काय बनतं, आणि बाकीचे ऍसिड आता आपण पाहिलं फ्लेवोनॉइड, नंतर ऍसिटेट पाथवे येणार, नंतर एवढं इम्पॉर्टंट आहे थोडंसं, एक दोन क्वेश्चन येतात. तो ग्लायकोसाइड म्हणजे काय? ग्लायकोसाइड मध्ये काय असतं, दोन कंपाऊंड असतात, एक तो ए ग्लायकोन असतो आणि एक तो ग्लायकोन असतो. ए ग्लायकोन म्हणजे काय? नॉन नॉन शुगर पार्ट, त्याला ए ग्लायकोन म्हणतात, किंवा नायट्रोजनस पार्ट. आणि जो ग्लायकोन पार्ट असतो तो असतो शुगर पार्ट. सो ए ग्लायकोन पार्ट और जेनिन पार्ट, इट इज नोन एज जेनिन, ए ग्लायकोन और जेनिन पार्ट, and another is the sugar portion known as a glycogen part. Okay, so metabolic process of glycoside formation occurs in the two steps. First step is nothing but the formation of a glycone. तो ग्लाइकोसाइड में जो ए ग्लाइकोन है ये सेपरेटली सिंथेसाइज होता है और ये शुगर सेपरेटली सिंथेसाइज होता है, बाद में ग्लाइकोसाइड का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. ओके, बायोसिंथेसिस, ए ग्लाइकोन आर फॉर्म्ड इन द बायोसिंथेटिक रिएक्शन separately, whereas in another step is nothing but the coupling of a glycone with the sugar moiety. It occurs, okay, in different types of glycoside formation or interaction of nucleoside occurs in between. तो ये बनता कैसे? In different types of glycosides. So interaction of nucleotide glycosides occurs between UDP glucose with alcohol and phenolic group of secondary compound, a glycone. A glycone पार्ट का जो अल्कोहलिक ग्रुप रहेगा या फेनोलिक ग्रुप रहेगा उसमें, और आपका जो न्यूक्लियोसाइड ग्लाइकोसाइड होता है यूडीपी, यूरिडिल ट्राइफॉस्फेट लगेगा, उसमें इंटरेक्शन होकर फिर बॉन्ड फॉर्म होता है. कैसे? ऐसे एक ग्लाइकोन का, ओके, अगर फिनोलिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ग्लाइकोन का इंटरेक्ट होता है आपके शुगर कंटेनिंग न्यूक्लियोसाइड में, तो आपको वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगा ओ, उसको बोलेंगे ओ ग्लाइकोसाइड. और देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन carbon, nitrogen and sulfur. So if there is a C type of bond in the glycoside known as C glycoside, if N nitrogen is involved known as N glycosides, if sulfur is there, S glycosides. Okay, so you can see in the first step क्या होता है, कैसे बनते हैं. इन द एक ग्लाइकोन पार्ट जो है वो अलग बनेगा, मतलब वो सिकिमिक एसिड पाथवे या बाकी पाथवे से बनता है, वो डिपेंड करता है ना ग्लाइकोसाइड कौन सा है. कार्डियक ग्लाइकोसाइड है तो वो एसिटेट पाथवे से आएगा, ठीक है. दूसरा कुछ ग्लाइकोसाइड है तो वो अलग अलग पाथवे से आएगा. In the first step, a glycone is formed, and okay, and for the formation of glycoside, a glycone and glycone part are joined together. So in the first step, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्लाइकोन है, यूडीपी शुगर, यूटीपी, पहले स्टेप में क्या होगा, यूडीपी शुगर बनेगा, यूडीपी शुगर फॉस्फेटिलेज होगा. तो इन फर्स्ट स्टेप यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट यूटीपी ट्रांसफर्ड एंड uridyl group to the sugar phosphate.
and forms UDP sugar and inorganic phosphate. The enzyme which catalyzes this reaction is known as a uridyl transferase. पहले रिएक्शन में क्या होता है, ये यूटीपी मतलब ये न्यूक्लियोटाइड और शुगर फॉस्फेट जो होता है वो कंबाइन होता है और शुगर इज ट्रांसफर्ड टू यूटीपी, तो यूडीपी शुगर प्लस पीआई ये होता है। भाई दूसरे स्टेप में क्या है, ये जो पूरा यूडीपी शुगर है वो ट्रांसफर होगा किसको, आपका जो ए ग्लाइकोन पार्ट है, ओके, ए ग्लाइकोन पार्ट में। नाउ इन द सेकंड स्टेप ट्रांसफर ऑफ शुगर मोइटी फ्रॉम यूडीपी टू ए सुटेबल एक्सेप्टर कौन रहेगा, ए ग्लाइकोन। दिस ऑकर्स, ओके, दिस रिएक्शन इज catalyzed by enzyme glucosyl transferase। ठीक है, देखो यहाँ पे यूडीपी शुगर प्लस ये ए ग्लाइकोन पार्ट, ठीक है, ए ग्लाइकोन पार्ट कैटलाइज कौन करेगा, ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज। सो क्या बनेगा आपका ग्लाइकोसाइड। एक्सेप्टर मतलब ये एक्सेप्टर मतलब क्या, ये रहेगा आपका ए ग्लाइकोन पार्ट प्लस शुगर पार्ट, ए ग्लाइकोन ए प्लस शुगर बन गए आपका ग्लाइकोसाइड्स। सो दैट्स हाउ देयर इज अ बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स इन द प्लांट। नाउ द शुगर्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आर मोनोसैकेराइड। तो ग्लाइकोसाइड में बहुत सारे टाइप के शुगर हो सकते हैं, monosaccharides like ramenose, glucose, fructose, or these are the monosaccharides. Deoxy sugar like digitoxos and cymarose. तो digitoxos किस में होता है, डिजिटोक्सिन में। A glycon moieties of cardiac glycosides। तो cardiac glycoside में A glycon कौन सा है, that is a steroidal in nature. So A glycon of cardiac glycoside, it is a steroidal in nature. These are the derivatives of cyclopentanone per hydrophenanthine ring, which consist of unsaturated lactonitol C17 and alpha hydroxyl group, which is the cis in structure of ring C and ring D. तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड को आप वहां पे साइक्लोपेंटेनोल पर हाइड्रोपेंटेन का स्ट्रक्चर रहेगा चार। हाउ देयर इज जनरेशन ऑफ, ओके, तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैसे बनेगा, तो पहले तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा स्क्वेलिन। क्या बनेगा, स्क्वेलिन। प्लांट में बनेगा स्क्वेलिन बाय यूजिंग डिफरेंट इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे सिकिमिक एसिड हो गया ये। सबसे लास्ट में बनेगा स्क्वेलिन, और स्क्वेलिन बनने के बाद में स्क्वेलिन से ही बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं। जैसे स्क्वेलिन से बनेगा आपका पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेनॉइड लाइक बीटा अमाइरिन, और ये क्या है, ये ए ग्लाइकोन पार्ट है। ये बीटा अमाइरिन क्या है, ए ग्लाइकोन पार्ट, इसको शुगर अटैच होगा और एक ग्लाइकोसाइड बनेगा। स्क्वेलिन से बनता है बाद में कोलेस्ट्रॉल से बहुत सारे ए ग्लाइकोन पार्ट मिलेंगे आपको, जैसे डायोजेनिन, कोलेस्ट्रॉल से डायोजेनिन बनेगा, यामोजेनिन बनेगा, सेरासापोजेनिन बनेगा। सो ऑल दीज आर द ए ग्लाइकोन पार्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स। इसके साथ में अगर कोई शुगर कंबाइन होगा तो ग्लाइकोसाइड बनेगा। कोलेस्ट्रॉल से बनता है 20,22 डाइहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, तो उससे बनेगा आपका प्रेग्निलेनोन, तो ये स्टेरॉइड बनेगा प्रेग्नेनोलोन, ओके, प्रेग्नेनोलोन। तो एडिशन ऑफ कार्बन एटम, तो 2,20,22 डाइहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में 2 कार्बन ऐड होंगे, ये कोलेस्ट्रॉल से बनेगा प्रेग्नेलोनोन, ओके। और इसमें अगर 2 कार्बन एटम यूनिट ऐड करें, ये प्रेग्निलोन जो है उसमें 2 कार्बन और एडिशनल होंगे और वो बनेगा डिजिटोक्सिजेनिन, डिगोक्सिजेनिन, इटोक्सिजेनिन एंड प्रोपेंथेलिन। तो ये सब क्या है, ग्लाइकोसाइड्स है। और उसमें अगर ये प्रेग्निलोन में 3 कार्बन एटम ऐड हो गए तो उससे बनेगा सिलारेनिन, सिलाग्लूकोसिन, लिब्रोजेनिन, ये भी क्या है, ग्लाइकोसाइड्स। सो दैट्स हाउ ग्लाइकोसाइड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट। The acetate pathway, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। The acetate pathway is important pathway for formation of various phytochemicals like fatty acids, polyketides, prostaglandin, alpha-toxin, tetracycline and other important phytoconstituent। acetate pathway से क्या बनेगा आपका, मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका ये दो, ठीक है, ये दो फैटी एसिड्स एंड पॉलीकेटाइड्स। सो acetate pathway से आपको मिलेगा फैटी एसिड एंड पॉलीकेटाइड्स, alpha-toxin। For the biosynthesis of fatty acid, एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म ए मेलानिल कोए। तो एसिटिल कोए का 2 मॉलिक्यूल अगर कंबाइन होगा, एसिटिल कोए कहाँ से है, यह आएगा आपका शुगर का मेटाबॉलिज्म में इंटरमीडिएट। सो ग्लाइकोलाइसिस में क्या है, एसिटिल कोए बनता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए दे आर कंडेंस्ड टुगेदर टू फॉर्म मेलानिल कोए, ठीक है। और एक मेलानिल कोए प्लस एसिटिल कोए बनेगा आपका, बाद में पूरा फैटी एसिड चलो जाए। सो biosynthesis of fatty acid, the acetyl CoA carboxylated to form a malonyl CoA,
and in presence of enzyme known as a acetyl-CoA carboxylase. Okay, that is the first step. Now second step, the energy requisite for the carboxylation is supplied by ATP and loss of carbon dioxide occurs. After this step, reduction. After this step, there is a reduction, dehydration, again reduction will occur. तो ये सीक्वेंस हो जाएगा. तो पहले इसमें क्या है कि दो एसिटिल कोए मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं. एसिटिल कोए में कितना कार्बन होता है? 2 कार्बन एटम. ठीक है, 2 कार्बन एटम. तो दो बनेंगे, 2 कार्बन एटम वाले एसिटिल कोए कंबाइन होंगे तो मैलिनिल कोए बनेगा. तो उसमें और एक एसिटिल कोए बनेगा तो ब्यूटारिल कोए बनेगा, पेंटारिल कोए, हेक्सारिल, हेप्टारिल, ऑक्टेरिल, नोनेरिल, डेकारिल. तो ऐसा लेंथ बढ़ते जाएगा उसका और वो क्या बनेगा बाद में? फैटी एसिड बनता है. During the both reduction process, electron is provided by NADH and H+. The formation of butyryl-CoA or butyryl ALP occurs and the coupling of between butyryl and malonyl will occur and then after reduction and repeated again whole chain. Malonyl-CoA binds again with the fatty acid residue by increasing the chain length. Carbon atom unit. The first end product of this is nothing but the palmitic acid. Palmitic acid is formed in the acid pathway, first product, that is 16 carbon atom fatty acid. The further chain elongated by various mechanism. कैसे होगा? जैसे एसिटिल कोए जो होता है वो एसिटिल कोए, साइट्रेट, एसिटेट, ये कोए एसिड. बाद में ये दो कंबाइन होकर बनेगा. ये क्या है? एसिटिल कोए. ये एसिटिल कोए, कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी. इसमें लगता है बाय दो एसिटिल कोए मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए मैलोनिल कोए. पहला स्टेप होता है दो एसिटिल कोए मॉलिक्यूल दे विल कंडेंस टू फॉर्म ए मैलोनिल कोए. ये मैलिनिल कोए बनेगा और बाद में एक बार मैलिनिल कोए बना तो ये मैलिनिल कोए फिर से एसिटिल कोए के साथ में कंबाइन होगा, ब्यूटारिल कोए बनेगा. ब्यूटारिल कोए बना तो वो ब्यूटारिल कोए फिर से कंबाइन हो गए. ठीक है, देखो ब्यूटारिल कोए बना तो ब्यूटारिल कोए मैलिनिल कोए के साथ में कंबाइन होगा, मैलिनिल एसिड टू फॉर्म ए हेक्सानिल. ओके, हेक्सानिल. मैलिनिल कोए और हेक्सानिल कोए कंबाइन होकर बनेगा ऑक्टेलिल कोए. मैलिनिल प्लस ऑक्टेलिल बनाएगा डेकेलोइल कोए. मैलिनिल प्लस डेकेलोइल बनेगा डिओडेकेनोइल कोए. मैलिनिल प्लस डिओडेकेनोइल बनेगा टेट्राडेकेनोइल कोए. टेट्राडेकेनोइल प्लस मैलिनिल बनेगा हेक्साडेकेनोइल कोए. तो हेक्साडेकेनोइल कोए और हेक्साडेकेनोइल एसीपी बनेगा हेक्साडेकेनोइड एंड बाद में बनेगा फैटी एसिड. तो कुछ इस तरीके से फैटी एसिड बनता है. सो इट इज डन बाय एसिटेट पाथवे. तो एक समरी है उसका. देखो जो एसिटेट बनेगा, एसिटेट इंटरमीडिएट रहता है, एसिटिल कोए बनेगा विच इज द सेंट्रल मॉलिक्यूल. तो एसिटिल कोए से बनता है फैटी एसिड. ये कहाँ से आएगा एसिटिल कोए? ये कार्बोहाइड्रेट से आएगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. एक होता है एसिटेट मेवालोनेट पाथवे, ये हो गया एसिटेट पाथवे. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया था, आई थिंक जीपैट 21 में आया था या 22 में आया था. सो फैटी एसिड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड इन द प्लांट बाय यूटिलाइजिंग द फॉलोइंग बायोजेनेटिक पाथवे. और ऑप्शन में था एसिटेट पाथवे, एसिटेट मेवालोनेट पाथवे, एसिटेट मेलोनेट पाथवे. तो याद रखो एसिटेट मेलोनेट पाथवे जो होता है वो आपको फैटी एसिड देगा, लेकिन एसिटेट मेवालोनेट पाथवे जो है वो आपको स्टेरॉइड देगा. एसिटेट मेवालोनेट पाथवे वो क्या देगा आपको? स्टेरॉइड. जो पिछले वाला देखा है आपने वो था एसिटेट मेलोनेट पाथवे. ठीक है, एसिटेट मेलोनेट मतलब एसिटिक एसिड, मेलोनिक एसिड. एसिटेट मेवालोनेट पाथवे मतलब एसिटिक एसिड, मेवालोनिक एसिड. यहाँ पे देखो तो एसिटिल कोए बनेगा उसका एसिटो एसिटिल कोए. कब बनेगा? when two acetyl CoA molecule combine together to form aceto acetyl CoA. और उसको ही अपन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा. now this is converted into malonyl CoA. malonyl CoA is converted into this geranyl pyrophosphate. बाद में उसका फर्नेसिल फॉस्फेट बनता है. बाद में जेरेनिल पायरोफॉस्फेट बनता है. फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट में और एक फर्नेसिल ऐड करेंगे तो स्क्वेलिन बनेगा. और स्क्वेलिन जब बनता है तो स्क्वेलिन इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स. कोलेस्ट्रॉल बनेगा स्क्वेलिन से. बाद में कोलेस्ट्रॉल से फिर प्रेग्नेलोन बनेगा, तो बाद में स्टेरॉइड बनेगा. सो स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस वे. तो क्वेश्चन अगर आ गया कि फैटी एसिड आर सिंथेसाइज्ड बाय फॉलोइंग बायोसिंथेसिस पाथवे तो एसिटेट मेलोनेट पाथवे आंसर आएगा. अगर पूछा कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स द ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट बाय फॉलोइंग पाथवे तो उसका आंसर आएगा एसिटेट मेलोनेट पाथवे. नेक्स्ट होता है अमीनो एसिड पाथवे.
कि 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स. So around 20 acids are important for synthesis of protein and plant in the plant. Transamination reaction along with the other amino acid pathway. Around 20 amino acids are important for the synthesis of protein in the plant. The transamination reaction along with the other acids like alanine, glutamic acid and aspartic acid with the amino transferase enzyme. ट्रांसफर द अमीनो ग्रुप, जो एसिड होता है जैसे एसिटिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड बना है, उसमें अमीनो ग्रुप डालेंगे तो वो ग्लूटामाइन बनेगा, लाइक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. अब बोलेंगे ये कहाँ से है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ये अगेन कहाँ से आता है, आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से. उसमें अमोनिया ऐड होगा एनएडीपीएच कैटलिस्ट का, सो उससे बनेगा ग्लूटामिक एसिड. ये बन गया आपका एक अमीनो एसिड. ये प्रपोज है. The amino acid can be differentiated into different groups. कि ग्लूटामेट फैमिली में आएगा अल्फा ग्लूटारेट. ठीक है, अमीनो एसिड्स इन द प्लांट कैन बी डिवाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी. तो पहला आता है ग्लूटामेट फैमिली, उसमें प्रीकर्सर कौन लगेगा आपको, अल्फा ग्लूटारेट. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So glutamate family amino acid synthesized in the plant from the which precursor, alpha ketoglutarate. Okay, so इसमें आता है ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट, arginine, proline. These amino acid comes under ग्लूटामेट फैमिली. ग्लूटामेट में ग्लूटामेट अमीनो एसिड ग्लूटामाइन, आर्जिनिन आता है, प्रोलिन आता है. तो ये सब प्लांट में ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये बायोसिंथेसिस होते हैं फ्रॉम द अल्फा कीटोग्लूटारेट. सेकंड कैटेगरी आता है एस्पार्टेट फैमिली. इसमें क्या आएगा कि इसमें ये अमीनो एसिड आते हैं. एस्पार्टेट में कौन से अमीनो एसिड आएंगे, जैसे आपका एस्परजिन आएगा, लूसिन आएगा, आइसोलूसिन, थ्रियोनिन वगैरह. तो सेकंड आ रहा है एस्पार्टेट फैमिली. सो oxaloacetate is a starting material for this amino acids. Oxaloacetate is a precursor for the synthesis of aspargine, isoleucine, threonine and aspartate and methionine. तो ये अमीनो एसिड एस्पार्टेट फैमिली में आएंगे. तीसरा आता है आपको उसमें अनदर एग्जांपल इज alanine, valine and leucine ग्रुप. ठीक है, तो ये दो हो गए और बाकी गए alanine, valine ग्रुप, leucine ग्रुप. ठीक है, चौथा अमीनो एसिड ऑफ सेरीन एंड ग्लाइसिन ग्रुप. और पांचवा आता है aromatic amino acid. ठीक है, सो दिस प्लांट अमीनो एसिड दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 5. कैसे बायोसिंथेसिस होगा उसका, पहले तो आता है ग्लूटामेट फैमिली में कौन से अमीनो एसिड है, ये ग्लूटामेट, अर्जिनिन, प्रोलिन, ग्लूटामाइन. दे आर बायोसिंथेसिस फ्रॉम अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट. एस्पार्टेट फैमिली में आता है एग्जांपल लाइक अर्जिनिन, एस्परजिन, आइसोलूसिन, थ्रियोनिन. वो कहाँ से बनता है, बायोप्रिकर्सर उनका होता है ऑक्सैलोएसिलेट, ऑक्सैलोएसिटेट. बाद में लास्ट वाला आता है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. तो वो कहाँ से बनेगा, ऑब्वियसली वो आता है सिकिमिक एसिड पाथवे से. सो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पायरुवेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट. ये अपन ने देखा है सिकिमिक एसिड पाथवे में, ये स्टार्टिंग मटेरियल था. सो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द सिकिमिक एसिड पाथवे. So amino acids are synthesized from intermediate like pentose phosphate pathway, glycolysis, citric acid cycle. Around 10 amino acids synthesized through 2 enzymatic step with the precursor. But rest of the amino acids like aromatic amino acids they are synthesized in the Sikimic acid pathway. ये देखो यहाँ से ऐसे कुछ स्कीम है. ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, पायरुविक एसिड. पायरुवेट से बनता है ये वाले अमीनो एसिड्स. सो वैलिन, लूसिन, सेरिन, सिस्टीन, अर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये अमीनो एसिड बनेंगे. सो ग्लूकोज का ही इंटरमीडिएट, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन में इंटरमीडिएट एक बनता है आपका इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, और उससे बनता है ये अमीनो एसिड हिस्टिडीन, टायरोसिन एंड फेनिलएलानिन. और पायरुवेट से आपका और एक मेटाबॉलाइट बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट. सो अल्फा कीटोग्लूटारेट से क्या क्या बनेगा, देखो ग्लूटामेट बनेगा, ग्लूटामेट से ये अमीनो एसिड बनेंगे प्रोलिन, ग्लूटामाइन और एथिन. इससे ही बनेगा होमोसेरिन और उससे बनेगा मिथ्योनिन. थ्रियोनिन बनेगा, उससे बनेगा आइसोल्यूसिन. और इससे डाई मोनोपाल्मिटेट इसमें ऐड होगा, मतलब पाल्मिटिक एसिड ऐड होगा तो उससे बनेगा लाइसिन. तो दैट्स हाउ अमीनो एसिड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड.